Hello, everyone. Welcome back to another exciting discussion on our channel. This side Priya Bhatia, and today we will discuss about something interesting with respect to machine learning. If you have ever trained any machine learning model, just let me know that have you just simply work with one model and you got the results? This is how a smooth machine learning project looks like. I hope everybody's answer is no. You must have trained multiple models to get the best accuracy, or you must have done a lot of uh, feature engineering techniques, EDA, and hyperparameter tuning in order to get the final version of it. So I don't think anybody will say that Priya, I have just run the one single pipeline, I got the final results, and I have just deployed it. This is not how smoothly the project looks like. We run multiple experiments, we try, we explore, and then finally we got the amazing results at the end of the day. And it's not only about machine learning. I think in deep learning, in NLP, in generative AI, everywhere this seems the same, right? The question is that how can we track everything? You know, I have, let's say, multiple versions. If I'll go inside my project folder, I have multiple versions of the Jupyter notebook. After a month or a two, once I will deliver my project, if somebody will ask me that, Priya, can you just share me the final version of the file? I'll get confused. Which one was my final version? Because we usually name it as V1, V2, V3, final uploaded, and so on. So that is where, to help us to do these things in a meaningful and a smoother way, we have something called as ML Flow. So today it's a master class on ML Flow, which will be helping for all the industry professionals as well as the aspiring machine learning engineers. So please have a look onto it till the very end. I have created multiple videos on this channel about the machine learning algorithms, its maths. But this is for the very first time I'm launching this video where I'm talking about how we can track these things. We can track multiple experiments, right? Before you will proceed further, I hope you all are aware that last week only we have started our AI engineering cohort. So if there is still anyone who is interested to join, you can have a look onto it. The link is in the description of this video. And make sure that if you are someone who is still having any confusion whether I should join or not, please try to reach out to me. You can mail me and I myself will revert back to you. Apart from this, once you will watch the video till the very end, make sure to comment on the specific video. What exactly have you learned over this type of discussions? And it will help me to understand the ideas about my upcoming videos as well. Make sure you will hit like button, share the video, and do subscribe to my channel. With that, let's get started. So, first of all, let's talk about, yes, what is ML flow? है ना? What is ML flow? ML flow है क्या? So, if you'll ask from an AI, you will observe that it is an open source AI engineering and MLOps platform, which is designed to manage the end-to-end machine learning and Gen AI life cycle. आज के टाइम पे फिर से इसका बहुत यूज हो रहा है मशीन लर्निंग के अलावा जनरेटिव एआई के अंदर भी. सो यू कैन सी, अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स को ट्रैक करना है, तो दिस इज वन ऑफ द वे. सबसे अच्छी चीज ये है कि एक ओपन सोर्स है, तो इसीलिए हर कोई इसको यूज कर सकता है एंड पीपल आर दैट्स व्हाई यूजिंग इट एज वेल. सो व्हाट इज दिस? यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जिसका मेन फोकस क्या है? जिसका मेन फोकस है टू मैनेज द एंड टू एंड मशीन लर्निंग पाइपलाइन. जनरेटिव एआई पाइपलाइन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, बट अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन द मशीन लर्निंग पार्ट. अब कैसे हम इसे यूज करते हैं? जैसा कि मैंने बोला कि हम किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फेजेस में काम करते हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट सबको आज के टाइम पे एनीवन हु इज ज्वाइनिंग माय बैच, who is joining this specific class, they already have gone through with my machine learning module, right everyone? So we know that when we talk about a typical machine learning workflow, what exactly that projects involves, उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, एक टिपिकल एमएल प्रोजेक्ट कैसा दिखता है? We know that it always starts with
problem understanding. After this, the next focus will be on data collection. We try to collect data based on the problem understanding. And the next focus will be on data cleaning. Cleaning से भी पहले data understanding. So whatever be the data set that we have collected, how the individual features looks like, what is the meaning of that? How many number of records we have? What is the meaning of that? Right? We will try to work on that specific part. After data understanding, we will be focusing on the next aspect, which is about next step will be, anyone guess? Data cleaning, yes. And EDA. We focus on data cleaning and EDA. Yep. After this, what's the next step? What is the next step after this? Obviously, we will be focusing on model training. Then what's next? We will be focusing on model evaluation. What's next? We will be focusing on model deployment. And at the very end, we will be focusing on monitoring. So can we say that this is the entire pipeline, which looks like this? We always start from problem understanding, and we'll go till monitoring stage. Now, you all know that when we go through with this, all these stages, model training ke andar, we try to work on different experiments. Yes, when we are in this model training stage, we run different experiments. For example, let's say you are working on a task of customer churn prediction. क्या हमने इस task को perform किया था अपने sessions में? Have you worked on the specific task of customer churn prediction? Yes. So over there, let's say you are saying that I'm implementing logistic regression. And you will be like, results are not good. Maybe the accuracy is not good. Maybe the precision or recall value is not good. Then you experiment with random forest. Then again, you figure it out that somehow this is also not working really well. Then you work with XGBoost. And finally, you worked with Light GBM. Right? And definitely for each specific algorithm, you will also have to tune the hyperparameters. For every algorithm, we will be having different sort of hyperparameters, right? So with respect to each algorithm, our next main focus, our next main goal will be to work on learning rate aspect, to work on maximum depth, to work on the number of estimators, to work on the regularization strength, right? So we need to work on different set of parameters with respect to each and every algorithm that we have, starting from logistic regression to random forest to XGBoost to Light GBM.
Now, let's say you have worked and maybe you concluded that light GBM works the best with the learning rate value as 0.0001, maximum depth as 4, number of estimators as 100, regularization strength as 0.1. Okay? Today, when you work around it. But after few weeks, an important question arises. Which model produced the best result? Another question will be, can I reproduce the same result today as well? Now, after a week, maybe if you have not stored your results in an effective way, the confusion will be that you will find for a given project multiple collab files, multiple Jupyter notebooks, multiple .py files, multiple spreadsheets, multiple screenshots, multiple personal notes. And when somebody will ask you this question on a random day, random timing, you will get confused. You will get highly confused. And this was the main challenge which initially the developers were facing. I remember when I was doing my research at IIT Hyderabad. I mean, I don't think today I have a folders of them, but inside my research folder, there were thousands of collab files which were there. And if we don't have any system where we can track everything from the day I started this project till the day where I'm ending, where I'm closing, and now I'm just working on monitoring this specific project, then we ourselves will get confused. It's very difficult to, work with multiple team members and to collaborate with them on the same project with multiple files. तो इससे common problems क्या हुई? So there are a lot of common issues which people started facing. The common problems in machine learning projects which were faced by almost everyone. First issue was the loss of experiment information. लोगों को एक टाइम के बाद, हालांकि उन्होंने शायद इन 4 एल्गोरिथम्स पे काम किया था, बट अगर उनसे पूछो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या आपके आउटकम आ रहे थे, क्यों वो अच्छा काम नहीं कर रहा था, तो याद तो उनको ऑब्वियसली होगा नहीं, बट उनके पास उसका ट्रैक भी नहीं था. They won't be able to give the answer. They won't be able to have the information about that. That was the real problem. That was a genuine issue. Second problem आई जो थी reproducibility पे. Reproducibility issues. मतलब क्या? Suppose today, let's say light GBM works extremely well. But if the exact same dataset, parameters, code versions, I will not record, in future, maybe after a week or a month, reproducing the same results will be very difficult for me. And that is why people started focusing on giving a random state value or a seed value whenever they start generating the random data points. Because what we want by the end of the day, we want it that today, whatever results we're getting, whatever be the evaluation matrices which we are getting, that should be same after a month, after an year, after 10 years, and so. And that is only possible if we are working on the exact same data set, if we are working on the exact same parameters, and exact same code version. Getting my point? Is it clear? Third common problem was that there is no as such collaboration which was possible. क्योंकि इतनी सारी फाइल्स हो रही थी. एक टिपिकल अगर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इट में इन्वॉल्व डेटा साइंटिस्ट, इट में इन्वॉल्व डेटा इंजीनियर, इट में इन्वॉल्व द पीपल फ्रॉम प्रोडक्ट स्पेसिफिक टीम, इट में इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम डेटा एनालिस्ट स्पेसिफिक टीम. तो अगर हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड कोर सिस्टम नहीं है जो कि उस प्रोजेक्ट को पूरे वर्कफ्लो को ट्रैक कर रहा है, तो डेफिनेटली द ओवरऑल प्रोसेस विल बिकम इनएफिशिएंट. वी कैनॉट communicate everything verbally. We need some centralization. We need some system जो कि उस पूरे के पूरे
सिस्टम को, प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहा है। एंड एवरीबडी इन माई टीम, not only in my team, but also the teams which are connected with me on this specific project, should ideally have a connection, should ideally have a access so that they can see ki what exactly is happening behind the scene. The next common problem was model version issues, the confusion of that. For example, everybody's way of writing the pickle file is different. Somebody worked in the project and they mentioned model.pkl. Then they mentioned they worked, they updated and they mentioned model underscore final.pkl. Then they mentioned model underscore final underscore v2 version 2.pkl. Then someone mentioned model underscore latest.pkl. Then somebody mentioned model underscore latest underscore final.pkl. So what happens? Nobody knows which model is actually deployed. अगर किसी से पूछूं, आपके फोल्डर में पिकल फाइल 5 पिकल फाइल है, कौन सी पिकल फाइल ऐसी है जो आपने डिप्लॉय की है, जो एक्चुअली में सर्वर पे रन हो रही है? तो अगर पूछा जाए तो कोई बोलेगा मॉडल डॉट पीकेएल, कोई बोल रहा है मॉडल लेटेस्ट फाइनल पीकेएल, कोई बोल रहा है मॉडल फाइनल v2. Nobody knows about it. That was the next biggest issue. I hope you're getting my point. And the last one is the deployment complexity. जब भी आप किसी मॉडल को डिप्लॉय करते हो तो इट रिक्वायर्स वर्जन कंट्रोल. ये हमने कल सीखा. इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, अगर मान लो आपने एक नई ब्रांच क्रिएट करके वहां पे फीचर्स को ऐड कर दिया, तो हमें पहले उसको टेस्ट करना पड़ेगा मेन ब्रांच में भेजने से पहले कि जो भी आपने फीचर्स नए बनाए हैं क्या वो उस ब्रांच पे सही वर्क कर रहे हैं, ताकि मेन ब्रांच पे प्रॉब्लम्स ना आए. So testing environment is another important factor. Next thing is the production management. तो अगर हमारे पास कोई प्रॉपर टूलिंग नहीं होगा, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर टूल नहीं होगा, तो डिप्लॉयमेंट उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. एंड इसीलिए वी केम अप विद, to avoid these problems, to avoid these troubles, to avoid these issues, we came up with something called as ML flow. We came up with something called as ML flow. So what is ML flow? It is an, as I have mentioned, open source platform that eventually helps us to manage the complete machine learning life cycle. तो जो भी मैं काम कर रही हूँ, जो भी मैं फाइल्स रन कर रही हूँ, जो भी मेरी मेट्रिक्स आ रही है, जो भी मैं हाइपर पैरामीटर्स यूज कर रही हूँ हर एक एक्सपेरिमेंट के, वो बैकएंड पे एमएल फ्लो टूल में जाके स्टोर हो रहे होंगे. और जब भी आप उस फाइल में अपडेट करोगे, जब भी आप कोई नया एक्सपेरिमेंट रन करोगे, तो वो सब चेंजेस आप वहां पे ट्रैक कर सकते हो. तो अगर आपको एक हफ्ते बाद जाके देखना है कि आपने लास्ट वीक कौन से फाइनल चेंजेस किए थे, क्या आपके रिजल्ट्स आए थे, यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक ऑन टू इट without any stress now. So what it actually provides, what are the features of this tool? First feature, as I have mentioned, is the experiment track. तो आप अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को ट्रैक कर सकते हो. दूसरा, यू कैन मैनेज योर मॉडल, कि कौन से मॉडल्स आपने रन करने, कौन से मॉडल्स को आपको बिल्कुल हटाना है. There is another component called as model registry. I'll showcase you. And then it has a deployment support. आप अपने मॉडल्स को वहां पे जाकर डिप्लॉय भी कर सकते हो. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर आप किसी भी चीज को मैनुअली नहीं डाल रहे. यू आर नॉट मैनुअली राइटिंग कि मेरी जो आज मैंने जो काम किया उसकी इवेल्युएशन मेट्रिक ये आई, या फिर जो मैंने आज काम किया उसका प्रिसीजन ये आया, या फिर जो मैंने आज काम किया उसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने पे ये बेस्ट मॉडल्स, ये जो बेस्ट पैरामीटर्स है ये आए. द एडवांटेज इज दैट इट विल automatically stores the
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी एक्सपेरिमेंट, बट आपको उसको बैकएंड पे यूज करना होगा, इंस्टॉल करके रखना होगा। और आप देखोगे कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेरे मॉडल की, वो अपने आप ही स्टोर कर रहा है, मुझे करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ मैन्युअली देखने की भी जरूरत नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? ऑल गुड? समझ में आया? तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि एमएल फ्लो एक इतना पावरफुल टूल है, जो काम इंडिविजुअली एक्सेल कर रहा था, जो काम इंडिविजुअली गिटहब कर रहा था, जो काम इंडिविजुअली फाइल्स हमारे लिए करती हैं, या जो काम इंडिविजुअली डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स करते हैं, वो सारे काम को अगर मैं मिला दूं तो वो एमएल फ्लो है। समझ रहे हो आप? बेसिकली, यू नो दैट वी हैव एक्सेल टूल. Excel tool is majorly used to store the structured information, for example, metrics and experimental results. तो अगर मेरे पास ऐसा टूल नहीं होता, तो शायद मैं एक शीट मेंटेन करती मैनुअली, और उसमें लिखती डेट, उसमें लिखती कौन कौन से मॉडल यूज किए, उसमें लिखती कि उन मॉडल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मेरी इवेल्युएशन मेट्रिक आई है। मैं गिटहब को यूज करती टू ट्रैक द वर्जन्स ऑफ द मॉडल। मैं शायद फाइल स्टोरेज स्ट्रक्चर को यूज करती टू स्टोर माय आर्टिफैक्ट्स एंड मॉडल्स। मैं शायद डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करती टू डिप्लॉय माय पिकल फाइल्स। पर अब मेरे पास में एक टूल है जिसका नाम है एमएल फ्लो, जिसने मेरा सारा काम आसान कर दिया। गिटहब, एक्सपेरिमेंट ट्रैकर, मॉडल रजिस्ट्री टू स्टोर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सब कुछ मैं एक ही टूल में कर पा रही हूं। Everything I am able to do in one tool. And that's why it is important to learn about this specific tool. तो आज के बाद जब भी आप किसी भी कोड को करोगे मशीन लर्निंग में, आप हमेशा एमएल फ्लो को यूज करोगे बैकग्राउंड में, सो दैट जो भी आप काम कर रहे हो वो ट्रैक होता रहे, आप फ्यूचर में उसे देख पाओ। ओके, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था बीच में, आर्टिफैक्ट्स। कितने लोगों को इसके बारे में पता है? इंडस्ट्रीज में ये वर्ड काफी यूज होता है, आर्टिफैक्ट्स। पढ़ो इसको एक बार, मैं पानी लेके आती हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स? कुछ समझ में आया? These are the physical files, or what we can say digital assets, generating during the ML pipeline or the training process. These included trained models, serialized dataset, evaluation metric, logs, and are essential for reproducing, tracking, deploying the models into production. अभी भी समझ में नहीं आया? बेसिकली जब आप किसी भी मॉडल को रन करते हो, तो ऑब्वियसली आपके पास में इंटरनली लॉग्स बनते होंगे, है ना? मॉडल फाइल्स जनरेट होती होंगी, जिनमें ट्रेनिंग होने के बाद में जो फाइनल ऑप्टिमाइज्ड वेट्स हैं वो स्टोर होते हैं। इवेल्युएशन मेट्रिक्स
ये सब चीजें आर्टिफैक्ट्स एक तरीके से आप बोल सकते हो, जिसमें जितना भी इंटरनल प्रोसेस है, पूरा वर्कफ्लो के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो स्टोर हो रही है, दिस इज एंटायरली स्टोर्ड इनसाइड दिस आर्टिफैक्ट्स. इज दिस ओके? इज दिस फाइन? समझ में आ रहा है? ऑल गुड? चले आगे. सो अब मैं आपको एक इमेज शोकेस करती हूँ, एंड लेट्स सी कितनों को वो इमेज समझ में आती है. सी दिस वन. कितने लोगों को ये इमेज देखने में समझ में आ रही है? इसको यहीं पे लगा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके. कितने लोगों को ये इमेज समझ में आ रही है? नॉट विजिबल प्रॉपरली? अभी भी नहीं? चलो, मैं बोल देती हूँ, अगर नहीं समझ नहीं दिखना, नहीं क्लियरली दिख रहा तो. So you can see why ML flow from chaos to clarity in machine learning. Without ML flow, there is a lot of chaos, there is a lot of confusion. तो आपको दिख रहा होगा एक बीच में बंदा बैठा है जो मशीन लर्निंग इंजीनियर है, एंड बहुत सारे स्कैटर्ड जुपिटर नोटबुक्स हैं जो उसने काम किए, बहुत सारी मेसी स्प्रेडशीट्स हैं उसके पास में. उसके पास, क्योंकि उसने बहुत काम किया है, तो अलग अलग मॉडल सेव्ड फाइल्स हैं, पिकल फाइल्स. प्रॉपर कोई वर्जन कंट्रोल नहीं है. उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे मैन्युअली वो कंपेयर कर रहा है सभी फाइल्स को ओपन करके कि कौन सा मॉडल बेस्ट परफॉर्म कर रहा है. एंड समवेयर इन द मिडल, क्योंकि इतना मेसी था सब, ही माइट lost the results as well. So which model was the best? What were the parameters? Maybe he has lost that completely. तो consequences क्या है? There will be a there might be a loss of experiments and results. There is no model versioning. We cannot reproduce the results. We cannot deploy, and if we deploy, it becomes risky. It's very hard to collaborate with other teams, and it will be a wastage of time and increasing of the cost. हमें बाय द एंड ऑफ अवर प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट में क्लीनरिटी रखनी है, क्लैरिटी रखनी है ना. क्योंकि जब आपका वर्क क्लियर होगा, तब आप क्लाइंट्स को भी उस काम को समझा सकते हो, आप अपने टीम्स के साथ में अच्छा कोलेबरेशन कर सकते हो, आप दूसरी टीम्स को भी इनवाइट कर सकते हो कि हमारे प्रोजेक्ट में जुड़ो. बट जब इतना सब स्कैटर्ड होगा, तो कोई भी आपके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही पहले तो स्ट्रेस्ड होगे, एंग्जियस होगे, परेशान होगे. राइट? आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि चीजें कैसे हो रही है. अब यहां पे क्या हुआ विद एमएल फ्लो? सब कुछ ऑर्गेनाइज हुआ, सब कुछ रिप्रोड्यूसिबल हुआ. कैसे हुआ? वी कैन ट्रैक द एक्सपेरिमेंट्स. फर्स्ट एडवांटेज, we can do the comparison. We have the model registry where every model is being versioned. It will be managed. We have a deployment strategies कि how can you deploy it. And इससे हुआ क्या, बेनिफिट्स क्या हुए? सारे एक्सपेरिमेंट्स हम एक ही जगह पे ट्रैक कर सकते हैं. रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसिबल भी होंगे और रिलायबल भी होंगे. इजीली हम कंपेयर कर पाएंगे मॉडल्स को. एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल रजिस्ट्री रखी हुई है, स्मूथ डिप्लॉयमेंट होगा. और कल को अगर मुझे किसी टीम के साथ कोलैबोरेट करना है, तो आई कैन जस्ट गिव देम द एक्सेस ऑफ दिस एमएल फ्लो, एंड दे कैन जस्ट ट्रैक कि पास्ट में क्या क्या इस प्रोजेक्ट में हुआ है, कैसे कैसे रिजल्ट्स आए हैं, कौन सा मॉडल किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, एंड थिंग्स विल बी ऑल राइट. डन? क्लियर है? इज इट फाइन? चले आगे. परफेक्ट. अब हम एक
प्रोजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे एमएल फ्लो हमारे प्रोजेक्ट में सुटेबल है। हमने अभी पाइपलाइन को डिस्कस किया था, राइट? वी हैव सीन डेटा कलेक्शन, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा क्लीनिंग एंड ईडीए, मॉडल ट्रेनिंग। अब आप अगर मुझसे पूछो कि आज आप हमें एमएल फ्लो पढ़ा रहे हो, तो एमएल फ्लो कौन सी पाइपलाइन के कौन से हिस्से में आएगा? तो मैं बोलूंगी जब आप मॉडल को डिप्लॉय करते हो उससे पहले अब हम एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर रहे हैं। उससे पहले अब हम एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर रहे हैं, विच इज अबाउट व्हाट विच इज अबाउट व्हाट एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग। कि अब हम अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे उसको ट्रैक करेंगे एंड देयर विल बी अ मॉडल रजिस्ट्री। हर एक रिजल्ट को ट्रैक किया जाएगा और मॉडल रजिस्ट्री के अंदर उसे सेव किया जाएगा। तो एमएल फ्लो एक तरीके से इस लेयर पे आता है। ये कैसे होगा? दिस इज वाया एमएल फ्लो। तो आज जो हम काम करने वाले उसमें हम ये मेक श्योर करेंगे कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को ट्रैक कर सके और मॉडल्स को आर्टिफैक्ट्स के फॉर्म में सेव कर सके, देख सके, ताकि कल को अगर कोई मेरे से मैनेजर पूछता है कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ जो आपने मॉडल एग्जीक्यूट किया था उसमें क्या बेस्ट पैराम्स थे, उसमें क्या कंफ्यूजन मैट्रिक्स आई थी, उसमें क्या रिजल्ट्स आए थे, यू विल बी एबल टू टेल टू देम। ऑल गुड? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना कहां पे हमारा एमएल फ्लो का रोल आ रहा है? तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि हमने अपने लास्ट क्लासेस में कहीं ना कहीं आ, ये वाला काम, ये वाला काम, ये वाला काम, ये वाला काम, ये वाला सीख चुके हैं हम? क्या हमें यहां तक की जर्नी अब पता है क्या? कैसे कोड लिखते हैं, कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे क्लीनिंग करते हैं, कैसे ट्रेनिंग करते हैं और कैसे मॉडल को इवेल्युएट किया जाता है? क्या ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये स्टेप्स हमें ऑलरेडी आते हैं या फिर हमें ये भी नहीं आता? देखो, अगर आप बोलते हो मुझे ये भी नहीं आता, मैं इसमें भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर तो इशू है। मतलब कि आपने कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग के स्टेप्स को, पहले वाले जो मेरे डिस्कशंस थे उसको मिस कर दिया। आई थिंक मैंने बेसिक लेवल से लेके एडवांस तक सभी मॉडल्स को डिस्कस किया हुआ है। और कहीं ना कहीं अपनी पाइपलाइन में देखा होगा आप लोगों ने कि ये जो स्टेप्स है ना, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग से मॉडल इवेल्युएशन तक, ये सभी स्टेप्स कॉमन है। द ओनली डिफरेंस कि आप कौन सा मॉडल लगा रहे हो। अब हमें एक्सपर्टीज किस में लेनी है? हमें एक्सपर्टीज लेनी है इन दो कामों में आज के सेशन में। जब आप बोलते हो ना कि मुझे एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, तो आपको एंड गोल मॉनिटरिंग पे जाना है। आप अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके अभी भी 4 टॉपिक बचे हुए हैं। तो जब ये एमएल ऑप्स का पूरा मॉड्यूल खत्म होगा, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू डू द इवेल्युएशन, यू विल बी एबल टू क्रिएट द एंड टू एंड प्रोजेक्ट। वो हो पाएगा जब हम इन 4 ब्लॉक्स को भी फिल कर देंगे। आंसर मिला? किसने, लोकेश ने पूछा था क्वेश्चन एंड टू एंड प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप बहुत नजदीक हो, पूरा नहीं हुआ बट आप बहुत नजदीक हो। देख पा रहे हो ना कहां तक पहुंच गए हैं हम? इट्स लाइक आपने 60 to 70% कर रखा है, बट जो 30% बचा हुआ है वो हमें फोकस करना है अब अपने डिस्कशंस में। तो करें फोकस, करें स्टार्ट? क्या बोलते हो, स्टार्ट करें? ऑल सेट? एवरीबडी इज रेडी? ठीक है। तो आज मैं अपने सेशन में वीएस कोड को यूज करूंगी। कोलैब को क्यों नहीं यूज कर रहे? सिंपल रीजन ये है कि देखो, जब भी आप किसी भी एंड टू एंड प्रोडक्ट को बनाते हो तो वहां पर आप आईडीज को यूज करके बना सकते हो।
जब भी आपको रिसर्च स्पेसिफिक पार्ट पे फोकस करना है, जब आप एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करते हो, तो कोलैब इज अ गुड वे, क्योंकि वहां पे आपके पास में जो रिजल्ट्स आते हैं वो साथ साथ आते हैं. यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑन द कंसोल साइड बाय साइड. या फिर जुपिटर नोटबुक इज अ गुड वे. बट नाउ वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ एंड टू एंड प्रोडक्ट. तो उसके लिए वी विल यूज अ VS कोड. तो मैंने एक फोल्डर बना लिया है. आप लोगों को बस सेशन पे फोकस करना है अभी. Once the session will get over, obviously you will get the recordings of the class. You can rewatch the recording and you can follow the same steps to execute at your end. But अभी के लिए एक एक स्टेप को देखना, और जहां पे लगे कि ये चीज प्रॉब्लमेटिक है, ये चीज क्लियर नहीं है, यू कैन जस्ट लेट मी नो. विल डू अ वेरी सिंपल प्रोसेस. देखो, हमारा मेन फोकस यहां तक का नहीं है, तो मॉडल इवेल्युएशन तक जो मैं कोड लिखूंगी वो तो बड़ा सिंपल लगने वाला है आप लोगों को. इट्स जस्ट दैट अब मैं .ipynb फाइल में नहीं लिखूंगी, .py फाइल में लिखूंगी. उसके बाद का जो स्टेप है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैसे कर रहे हैं. ठीक है. सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ओपन अ टर्मिनल. एंड इसमें आप यूज करते हो कोड डॉट. अब इससे होगा क्या कि यू विल बी यू विल बी एबल टू create a you will be able to open a VS code in the specified directory. अब यहां पे ना कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे. सबसे पहले वी विल ओपन द टर्मिनल. करा ओपन. अच्छा, अगर मुझे इफ आई वांट टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट, हाउ विल आई क्रिएट इट? इट्स अ वेरी फर्स्ट स्टेप कि जब भी आप किसी भी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो, ताकि जो भी डिपेंडेंसीज आप इंस्टॉल करोगे आप उसी एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करो. सो हाउ टू क्रिएट द वर्चुअल एनवायरनमेंट? क्या हमने ये पहले कभी डिस्कस किया? क्या हमने पहले कभी डिस्कस किया? वेरी गुड. द कमांड इज द कमांड इज python -m virtual environment venv. So the name also I am sharing is a venv. तो आप देखोगे आपके पास में लेफ्ट साइड पे एक फोल्डर बन के आ गया venv का. देखा आप लोगों ने? बना फोल्डर और वो एक्टिवेट भी हो गया. तो आप देखोगे कि यहाँ पे venv करके आपके पास में अब आगे से एक ब्रैकेट दिखाई दे रहा है आपको. दिख रहा है सभी को? एवरीबडी कैन सी दिस? तो ये डिफरेंस होता है जब आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम करते हो, तो आपको ब्रैकेट के अंदर venv या जो भी आपके एनवायरनमेंट का नाम है वो दिखेगा. उसके बाद आपको पाथ दिखेगा. नाउ सबसे पहले मुझे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? ML फ्लो की डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो क्या कमांड होगी इंस्टॉलेशन करने की? सो ओवर हियर वी विल यूज all the libraries. For example, we are seeing pip install mlflow 2.22.1, scikit-learn, pandas, matplotlib. अगर और कुछ भी अगर मुझे फ्यूचर में लगेगा कि रिक्वायर्ड है इंस्टॉलेशन के लिए, वी विल डू दैट. बट अभी के लिए इतना करते हैं. तो इट विल टेक सम टाइम एंड उसके बाद आपका पूरा के पूरा सिस्टम जो भी रिक्वायर्ड होगा इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा. नाउ लेट मी डू वन थिंग इन द मीन टाइम. जैसे मैंने कल के सेशन में आप लोगों को डॉक्यूमेंट में भी कमांड शेयर किया था, आई विल शेयर विद यू साइड बाय साइड. सेशन कमांड्स. अब ये इनिशियल स्टेप्स हैं, ये आप देखोगे कि आप हर बार करोगे ही. सो पाइथन -m venv टू क्रिएट द वर्चुअल एनवायरनमेंट. उसके बाद यू नीड टू एक्टिवेट द वर्चुअल एनवायरनमेंट. अगर वो एक्टिवेट नहीं हुआ है तो एक्टिवेट द वर्चुअल एनवायरनमेंट. तीसरा स्टेप, you need to all the install all the
required dependencies. You can use this command. Now I think हो चुका होगा, अभी हो रहा है वो. अब मैं चाहती तो मेरे पास कोड मैंने अभी सेशन से पहले किया है, मैं आप लोगों को शोकेस वो भी कर सकती हूँ. अगर लगेगा कि प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है, एरर ज्यादा आ रहे हैं, तभी जाएंगे, नहीं तो लाइव ही करेंगे. मुझे लाइव कोड करने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि लर्नर्स को काफी इंटरेक्टिव लगता है सेशन, और जो भी इश्यूज होते हैं उनको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, मेंटर्स के पास में भी एक्चुअल में इश्यूज आते हैं, एंड उससे ही पता चलता है कि फिक्स कैसे करते हैं, है ना. सो यू विल लर्न कि ऑन द गो कि अच्छा, अगर मेरे पास भी अगर मैं काम करता हूँ तो इश्यूज आते हैं, तो कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं. कोड पढ़ने में वो फील नहीं आता मुझे पर्सनली, हालांकि इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम जब हम सेशंस में पढ़ाते हैं तो, एंड दैट्स व्हाई मेनी मेंटर्स प्रेफर दैट. बट इट्स ओके, आई मीन इफ वी enjoy that stuff, let's do it, है ना. आगे बढ़े. अब एक बार चेक कर लेते हैं. अच्छा, उससे पहले जितने भी हमने इंस्टॉलेशन किया उसको हम requirements.txt फाइल में फ्रीज कर देते हैं. सो हाउ कैन वी डू दैट? वी विल से pip freeze requirements.txt. तो आप देखोगे कि एक फाइल क्रिएट हो गई है मेरे पास में. अगर मैं उस फाइल को ओपन करूं तो जो भी मैंने इंस्टॉलेशन किया है सारे के सारे वर्जन्स यहां पे आ गए हैं. इसमें अगर आप चेक करोगे एमएल फ्लो भी होगा, है ना, एमएल फ्लो. ठीक है, वेरी गुड. वैसे तो हमने वेरीफाई कर लिया, बट अगर आपको अपनी स्क्रीन पे वेरीफाई करना है तो आप इस तरीके से वर्जन पूछ सकते हो. एंड यू कैन सी. ठीक है, तो जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हो या तो पहले ही रिक्वायरमेंट्स और टीएक्सटी फाइल क्रिएट कर लो, अगर नहीं करते तो बाद में भी कर सकते हो. इंस्टॉलेशन के बाद आप लिख दो पिप फ्रीज requirements.txt. अच्छा, ये बेसिक कमांड्स है. अगर आपको लगे कि मतलब ये चीजें अभी मुझे समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं. जब आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे यू विल गेट बेटर आइडिया, और फिर आपको ये कमांड्स रट जाएंगे टाइम के बाद, मतलब याद ही रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे करते हैं. ठीक है, ओके जी. अब मेरे को एक और फाइल क्रिएट करनी है विद द नेम ऑफ train.py. ये एक ऐसी फाइल है जिसमें मैं मेरा मेन फोकस होगा ट्रेनिंग करने पे. ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बट अभी के लिए हम एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम train.py फाइल को यूज करने वाले हैं. ओके, ठीक है जी. अब प्रोजेक्ट कौन सा यूज करें? अभी के लिए हम आइरिस डेमो पे ही काम करते हैं, एंड देन वी विल सी कुछ और बेटर लगेगा तो उसको भी देखेंगे. सो वी विल से इंपोर्ट एमएल फ्लो. ठीक है, आई विल इंपोर्ट ऑल द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज: pandas, matplotlib, इसके अलावा numpy, सीबोन. सीबोन शायद हमने इंस्टॉल नहीं किया इसलिए इशू आ रहा है, छोड़ो. इसके अलावा फ्रॉम sklearn dot metrics I will import accuracy score. I'll import confusion metrics. प्रिसीजन रिकॉल भी हम कर सकते हैं. उसके बाद यू विल से फ्रॉम sklearn dot linear underscore model I will import a logistic regression model. Done. From sklearn dot datasets I will import a iris data. From sklearn dot ensemble I will import a random forest classifier. ठीक है. And any other thing which we are missing? From sklearn dot model underscore selection
I will import something called as train test split. I think we have imported all the required libraries. Yes. Now I think we need to set the experiment. तो आप अपने experiment को नाम दे सकते हो mlflow dot set underscore experiment. Experiment का नाम दे दो iris classification. Done. And once it is set, you can print the statement. This is for our demonstration only. You can say, hey, the experiment is set. Experiment is all set. ठीक है, ये हम अपने अपने प्रिंट के लिए लिखवा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है. अभी तक कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? सिंपल ही है. क्या हमने आइरिस डेटा पे पहले कभी काम किया? क्या हमने आइरिस डेटा पे पहले कभी काम किया है क्या? सब लोगों को अवेयरनेस है ना इस डेटा के बारे में? कोई ऐसा है जिसको पता ही नहीं है डेटा किस बारे में है, क्या होता है इसमें, कितने फीचर्स हैं, क्या है? अब मैं यहाँ पे आइरिस ले रही हूँ, आप कॉम्प्लेक्स डेटा लेना अपने एंड से जो आप कंपनीज में यूज कर रहे हो. क्योंकि मैंने बताया ना, मेरा पर्पस तो मॉडल इवेल्युएशन तक बताना है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक अच्छे लेवल पे आपको उसके बारे में समझा रखा है. तो दैट इज नॉट माई मेन पॉइंट, इसलिए मैंने एक रैंडम डेटा ले लिया. बट व्हेन यू विल बी वर्किंग इन योर फर्म, ऑब्वियसली यू विल बी पिकिंग अ कॉम्प्लेक्स डेटा, यू विल बी वर्किंग ऑन अ कॉम्प्लेक्स डेटा. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप उस डेटा पे काम कर रहे हो. ठीक है. सो फॉर नाउ आई विल जस्ट सिंपली लोड द डेटा. So over here we have imported all the required libraries. And यहाँ पे हमने we have set the experiment for the experiment tracker thing in the ML flow. Now we have to load the data. कैसे करेंगे load? Function याद है ना? X, Y, load iris. I will return XY as true. Now we will split the data into train and test set. So we have X string, we have X test, we have Y train, we have Y test, train test split, we have X, we have Y, and we have a random state which is equals to 42. Fine. Now, if you want to display the records or the length of train and test set, you can display that. Okay, let's display that. So we can say print training samples and over here we can say length of X string. डन है जी. प्रिंट कर ले. क्या? किसको? टेस्टिंग सैंपल्स को. लेंथ ऑफ एक्स टेस्ट. अभी तक कोई दुविधा? अभी तक कोई इशू? सिंपल है, ये तो हम करते रहते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बातें हैं, है ना? ठीक है. अब समझ में आ रहा है कि क्यों हमने पहले उन सब चीजों पे काम किया और क्यों हम डिप्लॉयमेंट और ये सब बातें हम सबसे एंड में समझ रहे हैं. क्योंकि अगर वो नहीं आता ना आपको, तो अभी आपको ये सब सिंपल बातें लग रही हैं, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती.
अब हमें एमएल फ्लो का वर्क फ्लो डिजाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। करें डिजाइन। सबसे पहले हम पैरम्स को डिफाइन कर देते हैं। अभी के लिए कोई हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में डिफाइन नहीं कर रही। आप ऑब्वियसली उस पर एड ऑन कर सकते हो, कर सकते हैं ना। ग्रिड सर्च सीवी लगा सकते हो, रेंडमाइज सर्च सीवी लगा सकते हो। अभी के लिए मैं फिक्स पैरम्स ले रही हूँ, ठीक है ना। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा रही हूँ मैं अभी के लिए। उसमें आई विल टेक अ सॉल्वर एज LBFGS. I will take maximum iterations as 100. I will take the random state as 42. फिक्स है, ले लिए। कैसे करेंगे? विद ml flow dot start run, एंड यहां पे आप अपने रन का नाम दे सकते हो। आई विल से माई रन नेम विल बी इक्वल टू मे बी बेस लाइन, क्योंकि मैं अभी बेस लाइन मॉडल क्रिएट कर रही हूँ। ये सब चीजें जो आप नाम लिख रहे हो ना, ये आपको दिखेगा उस टूल में, मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले हम अपने पैरामीटर्स को लॉग करते हैं, हम अपने पैरामीटर्स को सेव करते हैं। लॉग कर दें तो यू विल से ml flow डॉट लॉग अंडरस्कोर पैरम्स, आ गया। एंड यहां पे आप बोलते हो कि भाई जो मेरे पैरम्स है ना, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया, उसको लॉग कर लो। हो गए सेव? कर लिया आपने अपने पैरम्स सेव, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि अब मुझे अपने मॉडल को ट्रेन करना है। तो यू विल से लॉजिस्टिक मॉडल which is equals to, you will apply logistic regression, एंड यहां पे आप बोलोगे कि भैया पैरम्स मुझसे मत पूछो, ऊपर मैंने डिफाइन किया वो उठा लो। उसके बाद यू विल से मॉडल लॉजिस्टिक मॉडल डॉट फिट ऑन द ट्रेनिंग सेट, ठीक है। ट्रेनिंग सेट हो गई, अब क्या करें बताओ जरा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करूं? ट्रेनिंग तो हो गई, हेल्प करो मेरी। व्हाट शुड आई डू इन द नेक्स्ट स्टेप? बताओ भाई, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं मॉडल ट्रेनिंग के बाद में? फिटिंग हो गई ना, मॉडल को फिट कर दिया आपने। अब क्या करूं इसके बाद? लेट्स से आपका मॉडल फिट हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट? प्रिडिक्ट, राइट? प्रिडिक्शन ऑफ द मॉडल। तो क्या करें प्रिडिक्शन निकालने के लिए? वी विल से लॉजिस्टिक मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, एंड वी कैन प्रिडिक्ट द टेस्ट, एक्स टेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स क्या होंगे। व्हाट्स नेक्स्ट? इवेल्युएशन ऑफ द मॉडल। हाउ विल वी इवेल्युएट? हाउ विल वी इवेल्युएट? वी विल गेट द वी विल यूज द एक्यूरेसी स्कोर, एंड इसमें आप एक्चुअल वैल्यू डाल दोगे वाई टेस्ट, एंड इसमें आप प्रिडिक्शंस को भी डाल दोगे एक्यूरेसी, ठीक है जी। डन है? सही है ना? कोई गड़बड़ अभी तक? अब ये इवेल्यूशन मेट्रिक को भी मुझे लॉग करना है, मुझे सेव करना है अपने एमएल फ्लो में। तो आई विल लॉग दिस इवेल्युएशन मेट्रिक। कुछ भी यूज कर लो, ये तो वेरिएबल्स हैं। आपको वाई प्रेड यूज करना है, आपको वो हैबिट है, आप वाई प्रेड यूज कर लो, ये तो आपके ऊपर है। ये सब बातें तो आप ही देख लेना। अब क्योंकि आप लॉजिस्टिक लगा रहे हो तो उसके आगे लॉग करना है तो लॉजिस्टिक लगा दो, मर्जी है, आप लोगों की मर्जी है, इसमें अब हम नहीं घुस रहे, ठीक है ना। जो आपको ठीक लगे, जो आपको लगे कि एक स्टैंडर्ड है और मुझे दिमाग में रहेगा मेरे कोड लिखते हुए, वो आप यूज कर सकते हो। मैंने वाइपरेट कर दिया, ठीक है। लॉग करें। यू विल से ml flow डॉट
log underscore. Now I want to log the metric. तो आप metric लोगे and you will say कि भाई मैं accuracy को स्टोर कर रहा हूं और मेरे वेरिएबल का नाम भी accuracy ही है. Finally, you will work on saving the model and register it. कैसे करोगे? You will say mlflow dot sklearn dot log underscore model. मुझे अपने मॉडल को लॉग करना है. जो मेरा लॉजिस्टिक मॉडल है उसको पकड़ो, उसमें आर्टिफैक्ट पाथ में मॉडल दे दो एंड रजिस्टर्ड मॉडल नेम में लिख दो इट इज अ आइरिस क्लासिफायर. मैंने नाम दे दिए. मैंने बोला देखो भाई सिंपल सी बात है, जो मेरा मॉडल है वो लॉजिस्टिक मॉडल है. जो आर्टिफैक्ट बनाओगे उसमें आप मॉडल करके डाल सकते हो. और रजिस्टर्ड मॉडल का जो नेम है, जो फाइल स्टोरेज होगी वो आइरिस क्लासिफायर के नाम से कर देना सेव. ठीक है. अब उसके बाद आई विल जस्ट गो अहेड एंड प्रिंट. मैं अपने कंसोल पे भी प्रिंट करवा लेती हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस कि बेसलाइन एक्यूरेसी कितनी आई. आई विल जस्ट प्रिंट द एक्यूरेसी एंड उसके बाद मैं रन आईडी भी प्रिंट करवा लूंगी ताकि मुझे पता चले कि एमएल फ्लो पे कौन सी रन आईडी पे वो काम कर रहा है. तो आई गेट फ्रॉम एमएल फ्लो डॉट एक्टिव रन, जो अभी एक्टिवली रन कर रहा है, डॉट इन्फो डॉट रन आईडी. क्योंकि हो सकता है कि आप एक ही बार में 10 या 12 मॉडल्स रन कर रहे हो अलग अलग सिस्टम पे. तो रन आईडी हर एक जॉब की अलग अलग होती है. मुझे इस स्पेसिफिक जॉब की जो बेसलाइन मॉडल में रन कर रही हूँ उसकी रन आईडी बता दो. अभी के लिए मुझे ये चाहिए. ठीक है जी, ऑल गुड. ये हमारा बेसलाइन मॉडल है. ये हमारा पहला मॉडल है जो हम रन करना चाहते हैं. क्या ये बात ठीक है? कोड में कोई प्रॉब्लम? एक बार चेक करके देख लें कोई इशू तो नहीं है. चेक करके देख लें कोई इशू तो नहीं है. आपको कोई इशू है इस कोड में? एक बार चेक करके देखते हैं. रन पाइथन. हो रहा है, हो रहा है. कुछ तो बढ़िया आ रहा है. आया? मैं बताती हूँ रन आईडी क्या है, अभी पता चल जाएगा आपको. आया? एक्सपेरिमेंट इज ऑल सेट. ट्रेनिंग सैंपल्स आ गए, टेस्टिंग सैंपल्स आ गए. या थोड़ा सा कोड में चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है इसमें. फिर से एक बार रन करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं. चलो कोई नहीं, अभी के लिए एक बार. अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एमएल फ्लो यूआई. यूआई यूजर इंटरफेस मुझे देखना है इसका. जो मेरी अभी रन जॉब रन हुई उसका यूजर इंटरफेस दिखा दो भाई. मुझे मुझे चेक करना है ये जॉब जो भी रन हुई ये कहाँ पे रन हो रही है. जो मेरे पास एक्यूरेसी आई, क्लासिफायर बना, आर्टिफैक्ट बना, ये मैं चेक कर सकते हैं क्या? इसने कुछ वेबसाइट का नाम दिया, इसको क्लिक करते हैं. अच्छा यहीं पे खुल गई क्या? मैं इसको मैन्युअली कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे खोल लेते हैं ताकि सबको क्लियरली दिखे. कुछ चल रहा है, कुछ तो चल रहा है. चल रहा है कुछ. क्या यहाँ पे, इसको तो डिलीट कर देते हैं डिफॉल्ट वाले को. अच्छा डिलीट नहीं होगा, डिफॉल्ट है. क्या आपको कोई आइरिस क्लासिफिकेशन करके दिख रहा है क्या? क्या आपको कुछ आइरिस क्लासिफिकेशन करके दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? दिख रहा है. कुछ तो दिख रहा है. नाम दिया था ना हमने आइरिस क्लासिफिकेशन. ठीक है. इसमें अगर मैं रन नेम का नाम देख रहे हो, रन नेम का नाम क्या है?
बेस लाइन। याद है आप लोगों को मैंने रन नेम का नाम दिया था? जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था रन नेम का नाम क्या दे रहे हो यार। रन नेम, बेस लाइन, नाम दिख रहा है? यही रन हो रहा है ना, आपकी जॉब रन हो रही है। अब हो सकता है कि आयरिस के लिए आप 10 मॉडल रन करो, तो अलग अलग नाम दे सकते हो आप। अच्छा, इसके अंदर जाते हैं। क्या आपको रन आईडी दिख रही है? रन आईडी, यूनिक आईडी, उसी को मैंने प्रिंट कराया था। अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो रन आईडी है, ये मैं कॉपी करती हूँ आपके सामने। ये वही रन आईडी है जो आपको यहाँ पे दिखेगी। देख लो ध्यान से एक बार, सेम है। तो मुझे ये शोकेस भी कर रहा है कंसोल पे, मैंने प्रिंट करवाया इसीलिए कर रहा है, ऐसा नहीं खुद से कर रहा है, कि भाई ये आपकी रन आईडी है जो आप अभी देख रहे हो। अच्छा, क्या मेरे कोड में कोई एरर है? अगर एरर आता तो मेरी जॉब फिनिश ना होती। स्टेटस क्या आ रहा है? फिनिश, मतलब कि इट इज एब्सोल्युटली वर्किंग वेल। किस टाइम मैंने क्रिएट किया, क्या टाइम पे किया, किसने क्रिएट किया? एक्सपेरिमेंट की आईडी भी आप चेक कर सकते हो, क्या एक्सपेरिमेंट आईडी है, ड्यूरेशन कितने टाइम तक चला, क्या सोर्स फाइल है, लॉग्ड मॉडल क्या है, रजिस्टर्ड मॉडल का नाम याद है आपको मैंने क्या दिया था? रजिस्टर्ड मॉडल का नाम मैंने क्या दिया था? आइरिस क्लासिफायर। देख रहे हो, रजिस्ट्री बन गई आइरिस क्लासिफायर के नाम से। इसमें अगर आप चाहो तो जाके देख भी सकते हो, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, एवरीथिंग। अब मैंने कुछ डाला ही नहीं हुआ तो कुछ है नहीं इसमें। क्या हमें समझ में आ रहा है? क्या हमें समझ में आ रहा है? ये वर्जन 1 है, पहली बार मैंने कोड क्योंकि रन किया है तो पहले पहला वर्जन है ये। फिर से एक और चीज दिखाती हूँ मैं आपको, एक और चीज दिखाते हैं। मैक्सिमम, क्या आपको हाइपर पैरामीटर्स दिख रहे हैं मेरे? मैक्सिमम आइट्रेशन सब कुछ सेव हो रखा है, रेंडम स्टेट, सॉल्वर। हो सकता है कि कल को मैं हाइपर पैरामीटर चेंज कर दूंगी, उस हिसाब से आपके पैरामीटर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जो मैंने पहला वर्जन 1 का एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मैंने क्या मॉडल्स यूज किए, क्या उसके पैरामीटर्स थे, क्या इवेल्युएशन मेट्रिक थी, सब सेव हो गया। मॉडल रजिस्टर हो रखा है प्रॉपरली। यहां पे आप चेक भी कर सकते हो, एक्यूरेसी 1, सिस्टम मेट्रिक्स। फिर आते हैं ये ट्रेसेस और आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पर उससे पहले, क्या हमें ये समझ में आ रहा है व्हाट इज सॉल्वर? लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर ऑप्टिमाइजर है युवराज। अगर आप यहाँ पे, हमने ये डिस्कस किया हुआ है अपने डिस्कशंस में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन। तो इफ यू विल सी, ये रहा, बाय डिफॉल्ट यही होता है LBFGS जो मैंने यूज किया। तो ये सॉल्वर क्या है? यू कैन सी L2 रेगुलराइजेशन। किस लिए यूज होता है? ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए, ऑप्टिमाइजर की तरह से। पढ़ा है ना हमने L1 वर्सेस L2 रेगुलराइजेशन अपने क्लासेस में। सो दिस इज फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन और L2 रेगुलराइजेशन टेक्निक। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो का मतलब क्या है? समझ में नहीं आया युवराज? गॉट इट, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? अब आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि मॉडल की मैट्रिक्स क्या है, सिस्टम की मैट्रिक्स क्या है। ट्रेसेस पे बात करें एक बार। लोकेश, थोड़ा कंफ्यूजन है, कैन यू प्लीज आस्क द क्वेश्चन दैट इज, क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है?
कोड पार्ट, ठीक है जी, कोड पार्ट पे चलते हैं। बताओ कहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है। ये देखो, इसमें आपके पास एक्यूरेसी आया। आपने बोला कि एक्यूरेसी को स्टोर कर लो। फिर उसके बाद आपने बोला कि मेरे मॉडल्स को अब मुझे सेव करना है। तो आपके मॉडल का नाम क्या है? आपके मॉडल का नाम क्या है? लॉजिस्टिक मॉडल नाम है। तो आपने अपने मॉडल का नाम लिखा। उसके बाद आर्टिफैक्ट और रजिस्टर्ड मॉडल नेम, ये क्या है? ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे, कहाँ पे देखा था हमने? ये आर्टिफैक्ट और रजिस्टर्ड मॉडल नेम। तो बेसिकली आपको अपने मॉडल को एक तरीके से स्टोर करवाना है, एक तरीके से फाइल के अंदर, ताकि उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसका सारा स्कीमा एक फाइल के अंदर ऑलरेडी सेव्ड हो। तो आपने यहां पे उसको डिफाइन कर दिया कि भाई, ये जो आर्टिफैक्ट है वो मॉडल है, और उसका नाम आइरिस क्लासिफायर रख दो। उसका नाम क्या रखो? आइरिस क्लासिफायर रख दो। इनफैक्ट यहां पे आप लॉजिस्टिक मॉडल भी बोल सकते हो। एक बार दोबारा रन करते हैं। कनेक्शन को क्लोज करने के लिए कंट्रोल+C को यूज करना है। ठीक है, जब आप खुद से रन करोगे तो ध्यान रखना। जैसे मैंने अभी इसको अबोर्ट किया ना, कंट्रोल+C लगाया मैंने। लेट्स रन दिस अगेन। फिर से देखते हैं। चला। फिर से जाएंगे। फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब दूसरी बार किया है अपन ने। ओह, माय बैड। ML फ्लो UI, इसको शुरू करेंगे। अब चलेगा। चल गया। चला। दूसरा वर्जन आया। ऑटोमेटिकली V2 दिख रहा है आप लोगों को? टाइम भी दिख रहा होगा। ये 9 मिनट पहले चला था, ये 33 सेकेंड्स पहले चला। बेसलाइन के अंदर फिर से गए, तो आपको ये पूरा ML फ्लो का मॉडल दिख रहा है, लॉजिस्टिक मॉडल। तो ये जो आर्टिफैक्ट्स दिख रहे हैं ना, लोकेश, मैं इसके बारे में बताती हूँ अब आप लोगों को कि क्या है। ये हमने इस कोड में डिफाइन किए कि आपको आर्टिफैक्ट्स मतलब कौन सा मॉडल यहाँ पे स्टोर करवाना है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मुझे, देख लो, मेरा लॉजिस्टिक मॉडल मुझे स्टोर करवाना है। और उस रजिस्टर्ड मॉडल नेम, मतलब कि जो जिस फाइल में आप स्टोर करो उसका नाम क्या है? आइरिस क्लासिफायर है। उसके बाद आप बोल रहे हो कि मेरे कंसोल पे भी एक्यूरेसी को प्रिंट कर दो, और जो अभी इस टाइम पे जो जो जॉब रन हो रही है ना, उसकी रन आईडी दे दो। ये तो मैंने आपको शोकेस करके दिखाया ही है कि रन आईडी क्या होती है। तो ML फ्लो में आप एक्टिव रन डालोगे। एक्टिव रन फंक्शन जितने भी एक्टिव टास्क होंगे, जो एक्टिव रन हो रहे होंगे, उसको प्रिंट करेगा। उसमें वो इन्फो एट्रीब्यूट को यूज करके आपको रन आईडी बता देगा, उसकी जितने भी रन आईडीज हैं, जो यूनिक रन हो रहे हैं वहां पे, उसको प्रिंट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपकी रन आईडी प्रिंट हो रही है। दिस इज फॉर अवर यू नो वैलिडेशन पर्पस ओनली। यूजुअली हम करते नहीं है ऐसा। अब लेट्स गो बैक। ये मुझे आपको बताना है कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है। ट्रेसेस, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स में हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, क्या होते हैं आर्टिफैक्ट्स? क्या पढ़ा हमने आर्टिफैक्ट्स के बारे में? थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको। तो दो चीजें आप देखोगे यहाँ पे, दो कीवर्ड्स अब आप देखोगे यहाँ पे। एक हम बोल रहे हैं आर्टिफैक्ट्स। अब तो आपने देख भी लिया कि आर्टिफैक्ट्स कैसे दिखते हैं, है ना? आई वॉन्ट टू रिमूव दिस। इससे होगा? छोड़ो। सो आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर द फाइल्स बेसिकली which are generated using, or we can say during the flow of the machine learning process, during the
machine learning life cycle that you genuinely want to save for future references. जैसे आप अपने मशीन लर्निंग के कोलैब फाइल में एक पिकल फाइल क्रिएट करते थे. क्यों करते थे पिकल फाइल क्रिएट? कौन बताएगा? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग द पिकल फाइल? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग द पिकल फाइल? What is the importance of using the pickle file? To store the weights, right? वैसे ही अगर आपको यहां पे अपने वेट्स को स्टोर करवाना है तो आप आर्टिफैक्ट्स में कराओगे. अगर आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स की वैल्यू स्टोर करानी है आप आर्टिफैक्ट्स में कराओगे. अगर आपको सीएसवी रिपोर्ट्स या पीडीएफ रिपोर्ट्स या विजुअल स्टोर करवाने हैं आप आर्टिफैक्ट्स में कराओगे. तो एक तरीके से ये आपके एक्सपेरिमेंट का पूरा की पूरा आउटपुट है. तो in a layman word you can consider that this is the output of your entire experiment. क्या मैं ये बात समझ में आ रही है? तो इसको आप हमेशा यूज करोगे to get the results. Is this fine? Is this clear to everyone? आर्टिफैक्ट्स क्लियर है? अब क्योंकि हमने बहुत सिंपल सा मॉडल क्रिएट किया है तो यहां पे अगर आप देखो तो कुछ ज्यादा हमने स्टोर किया ही नहीं है. बेसिकली आपको यहाँ पे प्रिडिक्शंस का दिख रहा होगा और इवेल्युएशन का दिख रहा होगा बट यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं. क्या क्या आ रहा है? आप देखोगे यहाँ पे एमएल मॉडल conda.yml जिसमें डिपेंडेंसीज है, model.pkl आ रहा है, एक YAML फाइल आ रही है और requirements.txt आ रही है. तो अभी के लिए मेरे लॉजिस्टिक मॉडल के अंदर ये सब आर्टिफैक्ट्स है. पर जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स फाइल्स को क्रिएट करोगे, कॉम्प्लेक्स मॉडल क्रिएट करोगे, आपकी ये फाइल्स इंक्रीज होती जाएंगी. समझ में आ रहा है ना? बट यू कैन सी अभी के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब यहाँ पे स्टोर्ड है. इज दिस फाइन? इज दिस ओके? ऑल गुड? तो क्या हमें आर्टिफैक्ट्स क्लियर है? क्या हमें आर्टिफैक्ट्स क्लियर है? नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय ट्रेसेस. ट्रेसेस क्या होता है? ये वाला जो टैब हमें दिख रहा है, ये वाला जो टैब हमें दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? ये क्या करेगा? You can see no traces recorded. This tab displays all the traces logged to this specific run. MLflow support automatic tracing for many popular GenAI frameworks. ठीक है. अब आप देखोगे LangChain, Llama Index, Crew AI, AutoGen, Anthropic, Bedrock, Gemini, Custom. बेसिकली आज के टाइम पे ये सारा इंटीग्रेट हो चुका है जितने भी जनरेटिव एआई के फ्रेमवर्क्स हैं उनके साथ में. ट्रेसेस करता क्या है? ये बेसिकली आप ये मान के चलो कि जो आपका एग्जीक्यूशन है ना उसका लॉग रखता है. सो इट इज बेसिकली अ, यू कैन से, डिटेल्ड execution record showing how a request flows through different components of ML system. अब क्योंकि हमारे सिस्टम में तो हमने कुछ ऐसा बड़ा डिजाइन ही नहीं किया, एक सिंपल सा प्रोसेस था, एक ही कंपोनेंट यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसलिए ट्रेसेस में कुछ स्टोर नहीं हुआ. बट लेट्स सपोज कि आप किसी एमएल सॉरी एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो अगर उसका आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो वहां पे जैसे अगर हम रैग सिस्टम की बात करते हैं तो हम डीबी को भी यूज कर रहे हैं, हम वहां पर यूजर की क्वेरी भी लेके जा रहे हैं, हम एम्बेडिंग मॉडल भी यूज कर रहे हैं वहां पे, और एलएलएम को भी यूज कर रहे हैं टू जनरेट द रिस्पॉन्स. तो जब आप बहुत सारे कंपोनेंट्स को साथ में यूज करते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि किस टाइम पे कॉल कहां पर जा रही है, हाउ इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. तो ट्रेस क्या करेगा? ट्रेस उन सभी कंपोनेंट्स का, जो अलग अलग कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड रखेगा, ताकि कल को अगर मेरा कोड कहीं पे फट रहा है तो आई कैन हैव अ लुक ऑन टू इट कि एग्जैक्टली कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है एंड हाउ कैन आई रिजॉल्व दैट स्पेसिफिक इशू. इज इट फाइन? इज इट ओके? ऑल गुड? तो ट्रेसेस बिलोंग्स टू द एग्जीक्यूशन हिस्ट्री, artifacts belongs to the saving of the pickle files or YAML files or whatever be the important files required during the entire execution process of ML lifecycle. That is the whole idea.
जैसे एक लेमन टर्म में एग्जांपल दूं, तो आप कभी भी किसी भी बड़े स्टोर में जाते हो तो हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज होती है सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कि कौन बंदा क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो एक तरीके से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो गई ट्रेसेस। आर्टिफैक्ट्स आप इस तरीके से मान सकते हो कि लेट से कि जो भी आप स्टोर कर रहे हो, जो भी आपकी फाइनल रिपोर्टिंग है, भले ही वो ग्राफ्स है या फिर वो ट्रेंड मॉडल है, उसको स्टोर करना इज आर्टिफैक्ट। समझ में आया ना? तो जो भी कंक्लूडिंग पार्ट होगा, जो भी हमारे पास में फाइनल रिपोर्ट्स होंगी हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट की, वो आर्टिफैक्ट्स के अंदर स्टोर होंगी। और जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होगी एक तरीके से कि एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, कैमरा हर जगह देख रहा है, ध्यान रख रहा है, वो ट्रेसेस के अंदर आएंगे। क्या हमें ये बातें क्लियर हो रही है? इज दिस समथिंग विच इज क्लियर टू एवरीवन? तो अभी हमने 2 बार रन किया और हमें दोनों बार क्या मिला? आरिस क्लासिफिकेशन के अंदर दोनों जॉब्स हमें दिखाई दे रही है। अब हम एक और मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज्ड मॉडल। हम उसमें बेटर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं, और हर बार जितनी बार भी आप रन करोगे, आपके सारे रिजल्ट्स कहां पे शोर होते जाएंगे? यहां पे शोर होते जाएंगे। तो कल को एक हफ्ते बाद भी अगर आप जाके देखते हो और चेक करते हो कि आपने इस टाइम पे जो मॉडल यूज किया था उसमें क्या मॉडल के मेट्रिक्स यूज किए थे, क्या उसके पैरामीटर्स यूज किए थे, कितना इजी है चेक करना? इजी है कि नहीं है? क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई, जिस प्रॉब्लम के बारे में हम इनिशियली बात कर रहे थे? क्या अब मैं रन्स को कंपेयर कर सकती हूँ? क्या मैं सिंपल कंपैरिजन से, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से कंपेयर कर सकती हूँ कि अच्छा पहले रिजल्ट ऐसे आ रहे थे अभी ऐसे आ रहे हैं? ये आसान है कि मैनुअल तरीका आसान है? आई थिंक दिस इज मच मच मोर इफेक्टिव। यस एवरीवन? तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोड पार्ट में हम अब अपने कोड को ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करेंगे। एग्जैक्टली, ड्यूरेशन भी कम हुई है तो वी कैन कंपेयर एवरीथिंग फ्रॉम एमएल फ्लो। So what we will do now, we will try to work on the optimization of this train file. Maybe we will try to apply some different algorithms, or we'll try to do the hyperparameter tuning, and maybe we'll try to change the parameters and see the results, and we will compare the results with the ML flow. मतलब I just want to showcase you कि अगर मान लो आप किसी और हाइपर पैरामीटर को आप यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट से सी। सी क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर सी क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज अ रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ, है ना? इट इज अ रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ। तो ये क्या करेगा? व्हाट एग्जैक्टली इट विल डू? इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम देखें, दिस इज 1, है ना? लेट्स से कि हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करी, एंड आफ्टर डूइंग अ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग द वैल्यू ऑफ सी हैव चेंज्ड फ्रॉम 1 to 0.5, है ना? सो लेट्स से कि आप बोलते हो कि नाउ माय आई हैव डन अ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग and my params value have been changed for C to 0.5। ठीक है? एंड आई जस्ट वांट टू सी कि अब रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है? सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रन द कोड अगेन। पहले इसको बंद कर दे जो चल रहा है, Ctrl+C करेंगे, अबोट हो जाएगा कनेक्शन। अबोट हो गया, इसको क्लियर कर देते हैं, एंड लेट्स रन दिस फाइल। लेट्स रन दिस फाइल। हुआ हुआ रन हुआ। ठीक है? अब एक बार हम वापस जाते हैं। ओ, फिर से मैं एक चीज भूल रही हूं। देखो, रन करने से पहले ना आपको यूआई पे रन करना पड़ेगा, एमएल फ्लो यूआई। जैसे आप उसे एग्जीक्यूट करोगे, देन यू विल गेट दिस, एंड व्हेन आई विल जस्ट रन दिस, क्या हमें एक और मॉडल चलता हुआ दिख रहा है? क्या हमें दिख रहा है कि उसका ड्यूरेशन और कम हो गया? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सी की वैल्यू 0.5 दिख रही है, एक्यूरेसी 1,
ऑब्वियसली ये मॉडल काफी मतलब जो हमारे डेटा सेट पे वैल्यूज हैं वो काफी छोटी है, तो दैट मेक सेंस, बट यू कैन सी हाउ द थिंग्स लुक्स लाइक। दिख रहा है ना सब कुछ? समझ रहे हो? इनफैक्ट यूजुअली हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी हाइपर पैरामीटर को चेंज करते हैं तो स्टैंडर्ड ये रहता है कि हम रन नेम का नाम भी उस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल C=0.5। तो इससे क्या होता है ना कि इससे अंडरस्टैंडिंग रहती है कि अच्छा इस रन में मैंने ये चेंजेस किए। तो आप रन नेम को बेसलाइन की जगह आप बोल सकते हो कि दिस इज माई रन नेम, एंड व्हेन यू रन दिस अगेन, and when you say ML flow UI, and when you execute this again, तो आपको दिखेगा कि अच्छा C=0.5 पे इस तरीके का रिजल्ट मेरे पास में आ रहा। गेटिंग माई पॉइंट? कहने का मतलब ये है कि जो आप अपना रन नेम भी लिखोगे ना, उसको अच्छा इंटरेस्टिंग लिखना कि समझ में आए कि अच्छा मॉडल किस टाइम पे क्या कर रहा है, एंड देन यू कैन इजिली कंपेयर द डिफरेंट रन्स दैट यू हैव विद द डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स। क्या हमें समझ में आ रहा है? इज दिस समथिंग विच इज क्लियर टू एवरीवन? ऑल गुड? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीवन? तो यहाँ पे यू कैन सी इवेल्युएशन, ऑल द रन नेम्स आर देयर। अगर आपको किसी की भी रन नेम की इंफॉर्मेशन को चेक करना है तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन टू इट बाय गोइंग इनसाइड दिस। देन यू हैव द मॉडल्स। प्रॉम्प्ट्स अभी हम यहाँ पे नहीं काम कर रहे। व्हेन वी विल गो टू द एग्जैक्ट जेनेआई स्पेसिफिक मॉड्यूल तो उसके बाद हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, कैसे हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं और कैसे हम उन चीजों को वर्क अहेड कर सकते हैं। Yes, all good till so far, whatever we have discussed. All good? अब आता है कि क्या इस स्पेसिफिक टूल्स की कोई प्रॉब्लम भी है क्या? Do we have any problem with the specific tools? That's the last topic that we have to cover up. So, over here you will observe, over here, mm, you will observe that ML Flow is a powerful MLOps tool, but it is not designed to solve every challenge in the machine learning life cycle. ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? देखो, it is used alongside other tools within MLOps ecosystem. Some limitations, for example, ML Flow is not a workflow orchestrator for scheduling the complex pipelines. It does not replace Git for source code version control. It does not replace data versioning control. It provides basic model serving, but it is not a complete production deployment platform. मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मुझे अपने डेटा वैल्यूज को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली स्टोर करवाना है तो ये बहुत इफेक्टिव टूल है, बहुत बढ़िया चल रहा है। एमएलऑप्स के अंदर हम एमएल फ्लो के अंदर उस चीज को करवा सकते हैं, जैसा कि हमने देखा बड़ा इजीली काम हो रहा है। बट जो हमने कल पढ़ा था रिगार्डिंग गेट, अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ये उसको रिप्लेस कर सकता है, क्या ये एक बेटर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, वीसीएस है, क्या ये कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस को भी इजीली हैंडल कर पाएगा, क्या ये प्रोडक्शन के डिप्लॉयमेंट के ऑल्टरनेटिव की तरह यूज कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम आने वाले डिस्कशंस में डिस्कस करेंगे डिप्लॉयमेंट टूल्स को। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा फ्लास्क, आपने सुना होगा स्ट्रीमलेट, है ना, फास्ट एपीआईज। वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स। इट्स नॉट दैट कि उसको ये रिप्लेस कर देगा।
इट्स जस्ट दैट कि जब भी मुझे अपने फ्लो के अंदर मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल में चीजों को स्टोर करवाना है, तो आई डोंट वांट टू स्टोर इट मैनुअली एनीवेयर. आई डोंट वांट टू टेक दैट कॉम्प्लिकेशन कि मैं अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग चीजें स्टोर कर रही हूँ. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई विल यूज द एमएल फ्लो इन फ्यूचर. क्या मैं ये बात समझ में आ रही है? इज दिस समथिंग क्लियर टू एवरीवन? ऑल गुड? तो यहाँ पे देखो, इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एमएल फ्लो इज कॉमनली इंटीग्रेटेड विद टूल्स लाइक गिट, डीवीसी, डेटा वर्जनिंग. जैसे हम कोड को वर्जन करते हैं ना, वैसे डेटा का भी वर्जन होता है. देखो, हो सकता है ना कि डेटा आज आप जो यूज कर रहे हो, 5 महीने बाद डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाए. जो डेटा नया आ रहा है वो एक अलग फॉर्मेट में आए, एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन में आए. तो इसीलिए उसके लिए होता है डीवीसी, डेटा वर्जनिंग कंट्रोल. सिमिलरली वी हैव अपाचे एयरफ्लो. ये हम पढ़ेंगे अपने सेशंस में, पूरी की पूरी पाइपलाइन को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए. क्या आप लोगों को ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब पता है? आज के टाइम पे तो हम इसको बहुत यूज करते हैं इस टर्म को, एलएलएम्स के डेवलपमेंट के बाद में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट in context with, let's say, LLM? You can see it is the process of managing, coordinating, optimizing large language model to function within complex AI applications. ऐसे ही अगर आप मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, कि कैसे हम अपने वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सके, कौन कौन से टूल्स को कोऑर्डिनेट करना है, मैनेज करना है, स्केड्यूल करना है. अगर आप वो सब चीजें एक प्रॉपर पाइपलाइन के थ्रू कर पा रहे हो, तो यू विल कॉल इट एज अ ऑर्केस्ट्रेशन. So if I'll just open any website to explain that, so you can see. Machine learning orchestration refers to the process of automating the deployment, management, monitoring of ML models at scale. It coordinates the numerous facts processed within an ML pipeline, such as data pre-processing, feature engineering, model training, validation, and deployment. Is it fine? Is it okay? Is it clear to everyone? क्या आप किसी ऐसे टूल को जानते हो जो कि प्रॉपर ऑटोमेट कर सकता है, ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है? डू यू नो ऑल अबाउट इट? क्या आपको ऐसे टूल के बारे में पता है जो कि मेजरली इसी के लिए यूज होता है मशीन लर्निंग के अंदर? पता है आप लोगों को? सोचो थोड़ा सा. मैंने क्योंकि डिस्कस किया हुआ है उस टूल के बारे में अपने सेशंस में. एनी टूल जो आप रिकॉल कर पा रहे हो which helps us in the entire process of automating the deployment process, monitoring the machine learning models? No, डोकर तो नहीं करता. फिर से पढ़ो. देखो, वो सारे के सारे जो एमएल में हमारे प्रोसेस होते हैं, पाइपलाइन होती है जिसमें डेटा प्री प्रोसेस हो रहा है, फीचर इंजीनियरिंग हो रही है, मॉडल ट्रेनिंग हो रहा है, वैलिडेशन हो रहा है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है, उन सभी प्रोसेस को वो डील कर रहा है एडब्ल्यूएस सेज मेकर. चले एक बार उसके ऊपर. तो अगर हम इसके बारे में पढ़ें, एडब्ल्यूएस सेज मेकर के बारे में पढ़े, तो आप यहां पे देखोगे, यू कैन सी it is a fully managed cloud service from AWS that unifies data analytics, machine learning, AI into a single development environment. It eliminates the heavy lifting of managing complex infrastructure and allows data scientists, developers, analysts to build, train, tune, deploy all the ML models, all the GenAI applications at any scale. तो यहाँ पे सब कुछ हो रहा है एक ही उसमें, और आप इसे ऑटोमेट भी कर सकते हो. ऑल गुड? समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? So you can see AutoML. This involves automating the entire machine learning process. Platforms like Google Cloud AutoML, H2O.ai, Data Robot. It allows users to build and deploy ML models with less dependency on advanced ML skills. Right? Perfect. Perfect, Akansha. Great if it is done to you as well. All good, everyone? समझ में आया? So you will observe that ML flow is commonly integrated with tools like Git, DVC, Apache Airflow, Docker, Kubernetes,
So the point is, ultimate point is that ML flow is an essential component of MLOps ecosystem. It majorly focuses on experiment tracking. अगर मुझे experiments को track करना है तो I will use that. अगर मुझे मॉडल को मैनेज करना है आई विल यूज दैट. अगर मुझे रिप्रोड्यूसिबिलिटी पे फोकस करना है कि भाई मेरे पैरामीटर्स जो हैं वो सेव रहे, डेटा सेट मेरा सेव रहे, तो आई विल यूज दैट. while it complement other tools used in production machine learning workflows. I hope it makes sense to everyone. All good? Is it fine? Is it okay? Clear?